Good evening, everybody. I hope you are able to hear my voice clearly. Okay. So, bache, yesterday, the live processes test that was given to you, उसमें कुछ questions थे जो बच्चों ने मेरे पास भेजे थे. Okay. In one of the questions, answer was not marked. That was of sphygmomanometer. That is used to measure blood pressure. वो मैंने आंसर टिक कर दिया था. And some of you had doubt in pyloric and cardiac sphincter. बच्चे we have to remember cardiac sphincter जो है it is present between esophagus and stomach. Cardiac sphincter कहाँ है? It is present between esophagus and stomach. All right. And stomach और duodenum के बीच में कौन सा sphincter है? That is pyloric sphincter. Okay. And some of you were also confused in digestive enzymes. एक मैंने अभी आपके पास एक जो मैचिंग क्विज भेजा था उसमें सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे. एंड एज आई कैन क्लियरली सी मेनी ऑफ यू आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भी बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हो. ओके. सो इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज रिवाइज इट थ्रू. एक बार इसको दोबारा रिवाइज करिए. मैंने जानबूझ के आपको वो डाइजेस्टिव एंजाइम वाला वर्ड वॉल पे जो क्विज भेजा वो जानबूझ के भेजा था अभी. सो आई गेट एन आइडिया कि आपको 5 बेसिक एंजाइम्स के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं. वहां भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं. ओके. प्लीज रिवाइज इट थ्रू. जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी. आई होप दैट इज क्लियर. ओके. हाँ जी सिमरन. Sir, in the test that you gave yesterday, एक question था जिसमें we had to mention the correct sequence of the chambers of the heart. तो सर उसमें मैंने लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल वैसे किया था, पर जो करेक्ट आंसर था वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और ऐसे था. तो why was it in that sequence? मुझे डबल सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम. जब ब्लड एंटर करता है हार्ट के अंदर कहाँ से एंटर करता है? सर राइट से आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड. यस सर. उसके बाद राइट से किधर जाता है? राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर ऑक्सीजनेटेड वापस किधर आता है? लेफ्ट में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल. हमें वो सर्कुलेशन के हिसाब से आंसर देना है ना. वी कैन नॉट गो दी अदर वे अराउंड कि पहले ऑक्सीजनेटेड की सप्लाई करके फिर डीऑक्सीजनेटेड को वापस लाएंगे. यू हैव टू रिमेंबर कि हम जब सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, यू हैव टू थिंक कि ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड कहां से एंटर कर रहा है. इट इज एंटरिंग फ्रॉम राइट एट्रियम. उस हिसाब से आंसर करना है सीक्वेंस. इज दैट क्लियर? यस सर. ऑलराइट. ओके. चलो. सो बच्चे, without wasting any more time, let's start up with our lesson today. बच्चे, we have to talk about transportation in plants today. We have already finished transportation in animals or humans. हम बात करेंगे आज बच्चे transportation in plants की. अब बच्चे, when you talk about transportation in plants, plants के अंदर बच्चे 2 important substances हैं जो ट्रांसफर होते हैं. First is water and minerals. Okay. They are absorbed from roots. They are absorbed from soil by root hairs. Okay. Soil से root hairs इनको absorb करता है. This is the first, or you can say the first 2 important substances. Water and minerals absorbed from soil by root hairs. Second is transportation of food. All right. But this transportation of food occurs in the form of sucrose. ये हम already discuss कर चुके हैं photosynthesis में. तो बच्चे, एक food की transportation होनी है in the form of sucrose in the plant. Second is transportation of water and minerals absorbed from soil by root hairs. तो बच्चे, ये जो transportation है, it occurs with help of specific vascular tissues. First is xylem, second is phloem. अब बच्चे, xylem and phloem are something जो हम class 9th में already पढ़ चुके हैं जिसके बारे में. Xylem, it is the vascular tissue which helps in transport of water and minerals. Xylem किस चीज में help करता है? Transportation of water and minerals. Transportation of food, it occurs through phloem. All right. अब बच्चे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम,
for these there are no specialized organs. जैसे अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्लांट्स के अंदर नहीं है. They have very simple mechanisms by which they will transport food, water and minerals. All right, so I'm just going to give you a brief idea first. What are we going to talk about today? First is ascent of sap. जो पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे बच्चे, that is ascent of sap. अब what do we understand by the term ascent of sap? It is upward transport. It is upward transport. It is upward transport of water and minerals. Water and minerals absorbed. Upward transport of water and minerals absorbed by root hairs from soil. Okay, through xylem. और बच्चे जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होती है? थ्रू जाइलम. अब बच्चे एज यू हैव लर्नड इन क्लास 9th, xylem is a type of vascular tissue. It is a type of plant vascular tissue and it comes under the category of complex permanent tissue. What is xylem? Xylem is complex permanent tissue. All right, इसके अंदर 4 components होते हैं. One is trachea. Okay, complex permanent tissue. It has 4 components: tracheids, vessels. इसके अंदर और क्या होता है? xylem fibers होते हैं और xylem parenchyma होता है. We are not going to talk about components here because that is something जो हम 9th में पढ़ चुके हैं. What are we going to deal with? We are going to deal with the transport. कि transportation कैसे हो रही है. So upward transport of water and minerals which are absorbed by root hairs from soil, that will occur through xylem, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ascent of sap. अब मुझे क्वेश्चन ये राइज करता है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स? वाटर और मिनरल्स अपवर्ड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? अब अगर आप ध्यान से सोचो, इफ वी हैव स्मॉल प्लांट्स सच एज ग्रासेस और स्मॉल हर्ब्स, ठीक है, उनकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो उनके अंदर तो हम एक बार सोच सकते हैं कि जो वाटर रूट्स के अंदर एंटर कर रहा है ऑस्मोसिस की वजह से, उसके प्रेशर जो क्रिएट होगा उसकी वजह से वाटर ऊपर जा सकता है. पर बच्चे अगर हम बड़े ट्रीज की बात करें, टॉक अबाउट टॉल ट्रीज लाइक मैंगो, इक्लिप्टिस, इन ट्रीज के अंदर वाटर को देखो कितनी हाइट तक ऊपर जाना है, एंड दैट टू अगेंस्ट ग्रेविटी. अब बच्चे फॉर वाटर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी वी रिक्वायर फोर्स. आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. पर बच्चे प्लांट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं. हार्ट तो है नहीं प्लांट के पास. जैसे हमारे अंदर हार्ट है विच इज द पंपिंग ऑर्गन विच इज जनरेटिंग द फोर्स फॉर पुशिंग द ब्लड फॉरवर्ड. ऐसा कोई मैकेनिज्म प्लांट्स के अंदर तो है ही नहीं. ऐसा कोई ऑर्गन प्लांट के अंदर तो है नहीं. जैसे बच्चे हम अपने घर में देखते हैं, वी हैव अ टैंक विच इज यू कैन से प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द रूफ. हम वाटर कैसे उसके अंदर पहुंचाते हैं? विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. पंप लगा होता है, मोटर लगा होता है, जिससे पानी ऊपर जाता है. अब बच्चे प्लांट के अंदर पानी कैसे ऊपर जाएगा? दैट मीन्स प्लांट के अंदर ऐसे कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से वो फिजिकल फोर्स जनरेट होगा, जिससे क्या होगा? वाटर विल मूव अपवर्ड. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, इसमें जो मेजर फैक्टर है या जो मेजर प्रोसेस है जो फोर्स जनरेट कर रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन. ओके, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? वाटर क्या कर रहा है? इट मूव्स अपवर्ड्स. ओके, ट्रांसपिरेशन. ओके, लेट्स फर्स्ट डिफाइन ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर वेपर. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Transpiration is loss of water vapor through
aerial parts of the plant, aerial parts of the plant. और स्पेशली बच्चे ये जो ट्रांसपिरेशन है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली दिस ट्रांसपिरेशन, ये कहां से होती है? इट अकर्स फ्रॉम स्टोमेटा. ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स फ्रॉम स्टोमेटा. पर बच्चे कल आपको एक मैंने क्विज में एक क्वेश्चन दिया था, लेंटिसेल्स. ओके, व्हाट आर लेंटिसेल्स? लेंटिसेल्स आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द बार्क ऑफ वुडी ट्रीज. तो वुडी ट्रीज के अंदर अबाउट 5% ट्रांसपिरेशन ऑल्सो अकर्स फ्रॉम लेंटिसेल्स. पर मेजर जो ट्रांसपिरेशन है इट विल अकर फ्रॉम स्टोमेटा. तो ये कौन से एरियल पार्ट्स हैं जहां से ट्रांसपिरेशन हो रही है? इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा. इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा present in leaves. ओके, जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके थ्रू मेनली ये होगी. पर अगर हम बड़े ट्रीज की बात कर रहे हैं तो कुछ ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल से भी हो सकती है. हाँ जी सिमरन. So the definition that you gave for transpiration, in this we can also write that loss of water in the form of water vapor. हाँ जी, वो भी सही है. देखो, द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स और लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स, एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं ना. यस सर. ऑलराइट, दैट इज आल्सो करेक्ट. बिल्कुल सही. ओके, सो लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज ट्रांसपिरेशन. कहां से होता है? इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स. पर बच्चे वुडी प्लांट्स में, ट्रीज में, ओके, some transpiration can also occur. Some transpiration can also occur through lenticels. अब बच्चे, what are lenticels? Lenticels क्या हैं? Lenticels are small openings on bark of woody trees. Small openings on bark of trees. तो हमें ये याद रखना है बच्चे कि कुछ जो हमारी ट्रांसपिरेशन है प्लांट के अंदर वो लेंटिसेल से भी हो सकती है. और ये जो लेंटिसेल्स हैं ये क्या है? These are small openings on the bark of trees. यहां से भी ट्रांसपिरेशन हो सकती है. पर जो मेजॉरिटी हमारी ट्रांसपिरेशन होगी वो कहां से होगी? इट विल अकर थ्रू स्टोमेटा. अब बच्चे, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है इसी की वजह से फोर्स जनरेट होती है which pulls the water upwards. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन से तो वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन से तो वाटर लॉस हो रहा है, तो हाउ इज इट हेल्पिंग इन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? पानी क्या ये अपवर्ड ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प कर रहा है? बच्चे, लॉस ऑफ वाटर वेपर कहां से हो रहा है? इट इज अकरिंग फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पानी वहां तक कैसे पहुंचा? इट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? फोर्स जनरेट होती है विच विल पुल द वाटर कॉलम अपवर्ड्स. ओके, आलोक इज सेइंग सक्शन पुल. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. बच्चे, अगर आप इस मैकेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो यू विल बी एक्चुअली अमेज्ड कि इतना फोर्स जनरेट होता है कि बड़े से बड़ा जो ट्री है, जैसे इक्लिप्टिस का ट्री है और रेडवुड ट्रीज, दे आर अबाउट 100 मीटर्स टॉल. इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं. ठीक है, उनके अंदर भी इतनी फोर्स जनरेट हो रही है कि वो क्या कर सके? वाटर को क्या कर सके? ऊपर पुल कर सके. एंड ऑल दैट फोर्स इज जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन. ओके, अब अच्छा, ये प्रोसेस होता कैसे है? हाउ इज इट अकरिंग? इसके लिए ना मैंने नोट्स में, अगर आपने नोट्स देखे हो, मैंने वहां एक बहुत सिंपल, ओके जस्ट अ मोमेंट, वहां मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका डायग्राम दिया हुआ है so that you can easily understand how is this process occurring. Okay, I'll just quickly explain कि ये प्रोसेस होता कैसे है, how is it occurring. बच्चे, यहां पहले आपको एक प्लांट दिखाया हुआ है. You have a plant here. अब बच्चे, all absorption of water
इट इज अकरिंग फ्रॉम रूट हेयर्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां से होता है? फ्रॉम रूट हेयर्स। ऑलराइट, अब बच्चे व्हेन दिस अब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, when this absorption occurs through osmosis, water will enter inside the root hair। जैसे यहां दिखाया हुआ है आपको, यहां से वाटर रूट हेयर में एंटर हुआ, ये इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है। फ्रॉम हेयर द वाटर विल मूव इन एंड इट विल मूव इनटू द जाइलम वेसल्स, इट विल मूव इनटू द जाइलम वेसल्स। ओके, अब बच्चे जाइलम वेसल्स की जो विड्थ है, जाइलम वेसल्स की जो विड्थ है वो इस तरीके से होती है कि उनके अंदर एक चेन जो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, इस तरीके से फिट हो सकती है। देयर विड्थ इज रेगुलेटेड इन सच अ मैनर कि उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या बने, एक चेन बने। ऑलराइट, एंड दे एक्ट लाइक बीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बीड्स ऑफ अ नेकलेस, सॉरी बीड्स ऑफ अ नेकलेस। आपने बच्चे कभी देखा होगा, अगर हमारे पास कोई नेकलेस है जिसमें बीड्स हैं, मोती होते हैं ना, अगर हम एक बीड को ऊपर पुल करें तो दूसरा बीड उसकी प्लेस लेने के लिए आता है। तो बच्चे किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है, यहां विड्थ ऐसे है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से फिट होते हैं। ऑलराइट, अब बच्चे व्हाट इज हैपनिंग, वंस अ वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट्स, स्टोमेटा से सिर्फ एक टाइम में एक ही वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकता है। तो जब वो इवेपोरेट होता है व्हाट हैपेंस, यहां एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा स्टोमेटा के अंदर, पार्शियल वैक्यूम बिकॉज अ वाटर मॉलिक्यूल हैज एस्केप्ड बाय इवेपोरेशन, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। अ पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड एंड बच्चे व्हेन दिस पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, this chain of water molecules is pulled upwards, this chain of water molecules is पुल्ड अपवर्ड्स। ऑलराइट, और आपको ये समझना है कि आपका जो लीव्स है, लीव्स के ऊपर मिलियंस ऑफ स्टोमेटा है। पूरे प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स। उन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है, दे आर ऑल हेल्पिंग इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। उस ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या क्रिएट होती है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे आपका पानी ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, तो बच्चे यहां जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। ऑलराइट, यहां बच्चे कुछ और फोर्सेस दी हैं, रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, एडिशन, कोहेशन, ट्रांसपिरेशन पुल। आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफली एक्सप्लेन दिस टू यू। व्हाट इज रूट प्रेशर? रूट प्रेशर क्या है बच्चे, वंस वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स, once water enters the root hairs what is going to happen, वहां प्रेशर बिल्डअप होगा। उस प्रेशर बिल्डअप की वजह से हम क्या कह रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर पुश होंगे। ओके, सेकेंड इज कैपिलरी एक्शन। what do we understand by the term capillary action? Capillary action means diameter of xylem vessels is so thin कि उसके अंदर सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल की चेन ही फिट हो सकती है। इट इज लाइक अ वेरी फाइन ट्यूब। और बच्चे जब ये होता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैपिलरी फोर्स मिलती है जिससे वाटर ऊपर पुश हो रहा है। ऑलराइट, थर्डली देयर आर एडिशन एंड कोहेजन फोर्सेस। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एडिशन? एडिशन का क्या मतलब है? इट इज attraction of water molecules and walls of vessels, or you can say walls of xylem vessels. okay, xylem vessels की walls और water molecules के बीच में जो attraction की force है उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन फोर्स। बच्चे इसको हम डेली लाइफ में देखते भी हैं। जैसे अगर आपके पास कोई ग्लास की ट्यूब है, उसके अंदर हम वाटर डालें तो आप नोटिस करोगे वाटर क्या है, अंदर जाके ड्रॉप्स की फॉर्म में उस ग्लास के पाइप के अंदर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाता है। ओके, दैट इज एडिशन। उसके बाद है कोहेजन फोर्सेस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोहेजन फोर्सेस? कोहेजन फोर्सेस का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में फोर्स है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कोहेजन फोर्सेस? cohesiveness or cohesion forces, it is attraction between water molecules.
attraction between water molecules, attraction between water molecules, water molecules के जो बीच में attraction है उसको हम क्या कहते हैं, cohesion forces. ऑलराइट, तो बच्चे वाटर जाइलम वेसल्स के साथ भी अट्रैक्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में भी अट्रैक्ट होते हैं. ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल्स बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ जाइलम, दैट इज नोन एज एडहेशन, एंड अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स उसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन. ऑलराइट, एंड ड्यू टू दीज फोर्सेस जो आपकी चेन है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो टूटती नहीं है. Okay, and this is the reason water molecules exist like a continuous column. They exist like a continuous column through the xylem vessels. Okay, Chirag is asking what do we mean by partial vacuum. बच्चे partial vacuum का क्या मतलब है? अगर बच्चे हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें, स्टोमेटा की जो कैविटी होती है उसका साइज इस तरीके से होता है, या जो ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म है वो इस तरीके से हो रहा है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है. और जब बच्चे वो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसकी जगह खाली हो जाएगी. यहाँ लेट्स से दिस वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट्स, तो यहाँ स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ जो स्पेस क्रिएट होगी उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, वैक्यूम जनरेट होगा. वैक्यूम का मतलब समझते हो, एक तरीके से खाली जगह. ओके, जब ऐसा होगा तो उसकी वजह से सक्शन फोर्स क्रिएट होती है विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल. जब ये पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा, सक्शन पुल क्रिएट होगी, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी पुल्ड अपवर्ड्स. ऐसे चेन लगातार एग्जिस्ट करती है, तो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा लाइन में, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इट विल बी पुल्ड फॉरवर्ड. ओके, सो दिस इस जो मैं कह रहा हूं पार्शियल वैक्यूम या वैक्यूम, उसकी वजह से फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कह रहे हैं. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा, सिर्फ एक ही इवेपोरेट हो सकता है, उसकी जगह खाली होगी, उसकी वजह से वैक्यूम जनरेट होगा जिससे सक्शन पुल आती है, विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल. दिस इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड्स. I hope Chirag that is clear. Chirag, that is clear? Okay, all right, ठीक है. चलो अब बच्चे लेट्स क्विकली समराइज दिस. इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम कैसे ट्रांसपिरेशन पुल को देखते हैं. ओके, सो बच्चे दिस थ्योरी इज समटाइम्स आल्सो रेफर्ड टू एज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. Ascent of sap, this is the most accepted theory, that is transpiration pull theory. Okay, transpiration pull theory. अब बच्चे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, what happens, the root hairs absorb water, the root hairs absorb water from the soil. The root hairs absorb water from the soil by process of osmosis. By process of osmosis. Okay, this generates root pressure, which also, okay, this generates root pressure which is more significant smaller herbs. बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है, बिफोर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वाज गिवन, बायोलॉजिस्ट या आप कह सकते हो साइंटिस्ट, दे वर ऑफ द व्यू कि रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाता है. पर बच्चे ग्रेजुअली जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई,
इट वाज ऑब्जर्व्ड कि रूट प्रेशर तो बहुत कम है, इतनी फोर्स तो जनरेट होती ही नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इतनी हाइट तक ऊपर चले जाए। पर बचे हर्ब्स के अंदर रूट प्रेशर सिग्निफिकेंट है, ओके, बट इन टॉलर ट्रीज इट इज नॉट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वहां जो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगी अपवर्ड ट्रांसपोर्ट की, दैट विल बी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पुल, ओके। सो इसके बाद क्या होगा, द वाटर एंड मिनरल्स, the water and minerals move into xylem vessels which have a very small diameter, which have a very small diameter, बच्चे इनका डायमीटर जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अब डायमीटर का सिग्निफिकेंस क्या है, दिस allows movement of water molecules like a chain। वाटर मॉलिक्यूल्स इस वेसल्स के अंदर कैसे मूव करते हैं, जस्ट लाइक अ चेन, जैसे लिंक्स होते हैं, ओके। वाटर मॉलिक्यूल्स आर strongly attracted, water molecules are strongly attracted, water molecules are strongly attracted to the walls of xylem and to each other by physical forces। अब अच्छा यहां हमने फिजिकल फोर्सेस डिस्कस की थी। Water molecules cling to the walls of xylem vessels with help of adhesion forces and to each other by cohesion। तो यहां कौन सी फोर्सेस हैं, adhesion and cohesion, these are the two physical forces, okay, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एक तो xylem vessel के साथ अटैच्ड है, दूसरा एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अब अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, when transpiration occurs, when transpiration occurs through stomata, when transpiration occurs through stomata, a partial vacuum is created which provides suction pull। अच्छा सक्शन पुल का क्या मतलब है, आपने कई बार देखा होगा अगर हम कहीं वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो वहां फोर्स जनरेट हो रही है, उसको सक्शन पुल कहते हैं। जैसे बच्चे अगर हम स्ट्रॉ यूज करें कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो व्हाट वी डू, वी पुल द एयर आउट फ्रॉम द स्ट्रॉ विद द हेल्प ऑफ माउथ। तो क्या होता है, बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फोर्स जनरेट करता है और आपका जो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रॉ के थ्रू आपके माउथ में आता है। तो ऐसे ही कुछ स्टोमेटा में है, when transpiration occurs partial vacuum is created which provides the suction pull to move water molecules upwards, okay। तो बच्चे this is how water is transported upwards। अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है,
ट्रांसपिरेशन जो है इसको हम कई बार कहते हैं इट इज अ नेसेसरी ईवल. ट्रांसपिरेशन इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज नेसेसरी ईवल. अब अच्छा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इफ वी एनालाइज दिस, अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, वी कम टू अ कंक्लूजन कि बच्चे पानी का तो लॉस हो रहा है. You'll be actually surprised to know about 90% of water which is absorbed by root hairs, it is lost by transpiration. 90% पानी जो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं वो ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाता है. तो आप बोलोगे इसका बेनिफिट क्या हुआ? बच्चे इसका बेनिफिट ये है कि इससे फोर्स जनरेट हो रही है जिससे पानी ऊपर जा रहा है. अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो पानी ऊपर जाने वाला ही नहीं है. यस, बट समटाइम्स इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑल्सो. प्रॉब्लम कैसे? ड्यूरिंग समर डेज जब पानी बहुत कम होता है सॉइल के अंदर, राइट अनीशा? इट्स अबाउट 90% वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन. ओके, इसलिए तो हम इसे नेसेसरी ईवल कह रहे हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड नेसेसरी ईवल? नेसेसरी ईवल क्यों है? अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो वाटर ऊपर ही नहीं जाने वाला. पर प्लांट के लिए ये कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है. कैसे? समर मंथ्स में क्या हो रहा है, सॉइल के अंदर पानी कम होता है, हीट भी ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगी. तो ये प्लांट के लिए कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि पानी का लॉस ज्यादा हो रहा है और सॉइल में पानी नहीं है. तो बच्चे प्लांट के अंदर फिर रेगुलेशन मैकेनिज्म्स होती हैं जहां स्टोमेटा को बंद किया जाता है. ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे. पर कई बार जब ट्रांसपिरेशन करनी ही पड़ेगी पानी को ऊपर ले जाने के लिए, तो आपने देखा होगा आफ्टर सम टाइम द प्लांट विदर्स. प्लांट क्या होता है? सूख जाता है. उसके बाद क्या होता है? इट विल डाई. ओके, तो ये बच्चे प्लांट के लिए कई बार डिलेमा भी हो जाता है. इफ यू टॉक अबाउट डेजर्ट प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स, आई होप आपको ये टर्म पता होगा, जीरोफिटिक प्लांट्स. Xerophytic plants such as cactus or other plants which are growing in very hot climates, बच्चे they do not open their stomata during daytime. वो डे टाइम में अपना स्टोमेटा खोलते ही नहीं है. ओके, आई थिंक हमने ये फोटोसिंथेसिस में टॉपिक मिस कर दिया था कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो डे टाइम में अपना स्टोमेटा नहीं खोलते. तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? क्योंकि बच्चे हमें पता है कि अगर डे टाइम में वो स्टोमेटा नहीं खोलेंगे तो CO2 भी अंदर नहीं आएगा. तो हाउ विल दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? तो बच्चे पर उनको वाटर भी कंजर्व करना है. तो व्हाट दे डू इज ड्यूरिंग डे टाइम दे विल नॉट ओपन देयर स्टोमेटा, दे विल कंजर्व देयर वाटर. डे टाइम में उनका जो क्लोरोफिल है, व्हाट इट डज, इट विल एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी and with help of that light energy it will prepare a intermediate product, temporary product. जो प्लांट्स डेजर्ट में हैं या जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? डे टाइम में वाटर को कंजर्व करने के लिए सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और उस सनलाइट को वो क्या करते हैं? एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं? दे विल कन्वर्ट इट इनटू अ टेम्पररी प्रोडक्ट. ड्यूरिंग नाइट टाइम में वो अपना स्टोमेटा खोलते हैं, CO2 अंदर आएगा, फिर उस टेम्पररी प्रोडक्ट की एनर्जी को यूज करके उस CO2 को वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं. तो दिस इज समथिंग विच इज सीन इन डेजर्ट प्लांट्स. ये हमने शायद फोटोसिंथेसिस में टॉपिक मिस कर दिया, ये मुझे अभी याद आ रहा है कि शायद हमने ये डिस्कस नहीं किया है. डे टाइम में जीरोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उस सनलाइट की एनर्जी से वो क्या करते हैं? टेम्पररी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें सनलाइट की एनर्जी क्या होती है? स्टोर हो जाती है. ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन दे विल ओपन द स्टोमेटा, CO2 विल एंटर और उस टेम्पररी प्रोडक्ट की एनर्जी को वो यूज करके फिर क्या करते हैं? दे विल कन्वर्ट इट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. दिस इज अ मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन वी सी इन डेजर्ट प्लांट्स. पर बच्चे जो नॉर्मल हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, जैसे अभी समर मंथ्स चल रहे हैं, अगर प्लांट को पानी ना दिया जाए तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद वो क्या होगा? इट विल विदर. दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन. ओके, तो बच्चे ये प्लांट के लिए कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो बच्चे प्लांट में पानी भी ऊपर जाने वाला नहीं है. तो दैट इज समथिंग दैट अ प्लांट हैज टू लिव विद. ऑलराइट, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर अलग अलग अडेप्टेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं. ठीक है, दिस इज हाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट. अब बच्चे यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट बच्चे, ट्रांसपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस.
Transpiration is a passive process. Transpiration is passive process. ओके ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये असर्शन रीजन में भी आपको आ सकता है. ट्रांसपिरेशन, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, मुझे ट्रांसपिरेशन नहीं लिखना था, मुझे लिखना था एसेंट ऑफ सैप. एक्सट्रीमली सॉरी. एसेंट ऑफ सैप, ascent of sap is a passive process. Ascent of sap is a passive process. All right. अब बच्चे why do we call it a passive process? Passive process का क्या मतलब होता है बच्चे? passive process वो processes हैं जिनके अंदर ATP यूज नहीं हो रही. passive process का क्या मतलब है? जहां ATP यूज नहीं होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एनर्जी का कोई और फॉर्म यूज नहीं हो रहा. यहां हमारा जो पानी ऊपर जा रहा है वो फिजिकल फोर्सेस की वजह से जा रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से. ठीक है, इसमें एटीपी एनर्जी और कोई इन्वॉल्व नहीं है. तो जो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं. जैसे बच्चे ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस, इसके अंदर एटीपी की जरूरत नहीं है. सिंपली आपका वाटर क्या करेगा? इट विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. यहां सेल को एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली ट्रांसपिरेशन में जो सक्शन पुल बन रहा है वो फिजिकल प्रोसेस है, उसमें एटीपी का जरूरत नहीं है. सो बच्चे ascent of sap is a passive process. Okay, I hope this is clear. What do we understand by the term passive process? Passive process का क्या मतलब है? What do we understand by this process? In this process there is no expenditure of energy. In this process there is no, या there is या लिख सकते हैं in this process ATP is not used या ATP is not consumed. ATP is not consumed. बच्चे when we move to transportation of food, वहां हम देखेंगे कि ATP यूज होगी ट्रांसपोर्टेशन में. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज एक्टिव प्रोसेस. पर बच्चे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है वो क्या है? दैट इज पैसिव प्रोसेस. इसमें एटीपी यूज नहीं होती, इसमें सिंपल फिजिकल फोर्सेस जो ट्रांसपिरेशन से जनरेट हो रही है उसकी वजह से वाटर ऊपर जाता है. इज दिस क्लियर? ये चीज सबको समझ आ गई? ऑल राइट, सो आई गेट अ थम्स अप. सो आई फील कि ये पॉइंट आपको क्लियर है. चलो अब अच्छा, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ okay, transpiration is done. All right, transportation of food. अब अच्छे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की जब हम बात करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. बच्चे यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ascent of sap? What do we mean by translocation? What is translocation? Translocation is transport of food. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं सुक्रोस. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस फॉर्म में होता है प्लांट के अंदर? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और सुक्रोस फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक थ्रू फ्लोएम. source to sink through phloem. ओके, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है. ट्रांसलोकेशन क्या है? इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सोर्स टू सिंक. फ्रॉम सोर्स टू सिंक. अभी सोर्स टू सिंक भी देखते हैं. सबसे पहले हमें यह समझना है कि ट्रांसलोकेशन में फूड कैसे जाता है. बच्चे दिस ट्रांसपोर्ट इज मल्टी डायरेक्शनल. दिस ट्रांसपोर्ट इज मल्टी डायरेक्शनल. अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मल्टी डायरेक्शनल? अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्लांट, according to need of plant the food can move upwards, downwards और sideways. बच्चे खाना तो हर जगह चाहिए,
तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, साइडवेज भी हो सकती है. व्हाट अबाउट एसेंट ऑफ सैप? एसेंट ऑफ सैप इज, इट इज यूनिडायरेक्शनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा, बट आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. एसेंट ऑफ सैप इज यूनिडायरेक्शनल. What do we understand by the term unidirectional? It is always upwards. एक ही डायरेक्शन में जाता है पानी, ऊपर. पानी कभी नीचे नहीं आता. It will always move upwards. So ascent of sap is always unidirectional. It is always unidirectional in xylem. But बच्चे, when you talk about translocation, it is transport of food from source to sink through phloem. This transport is multi-directional. Okay. This transport is multi-directional. It can be both upwards, downwards or on lateral sides. ठीक है? Is this clear? ये सबको समझ आ गया? Unidirectional, multi-directional में कोई डाउट तो नहीं है? All right. Okay. Very good. चलो. अब अच्छे, let's try to understand these terms. ये जो मैंने लिखे हैं, source to sink. What do we understand by the term source to sink? Okay. बच्चे, लेट्स से जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है, ओके, फोटोसिंथेसिस के टाइम लीव्स दे विल एक्ट एज सोर्स. लीव्स दे विल एक्ट एज सोर्स, क्योंकि वहां खाना बन रहा है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स विल एक्ट एज सोर्स. ओके. रूट्स और एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट जहां खाना नहीं बनेगा, they will act as sink. Okay. Leaves जहां खाना बन रहा है photosynthesis के टाइम, okay, leaves will act as source. Roots they will act as sink, जहां खाना नहीं बन रहा या खाने की स्टोरेज होनी है. पर बच्चे, ये जो सोर्स टू सिंक का रिलेशन है, ये बहुत जल्दी चेंज भी हो जाता है प्लांट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ड्यूरिंग लेट्स से स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन व्हाट हैपेंस? लीव्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, लीव्स फॉल. ओके. लीव्स क्या होते हैं? गिर जाते हैं प्लांट्स के, डेसिडुअस प्लांट्स में. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब क्या होगा? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? रूट्स जहां खाना स्टोर हुआ था, वो क्या बनेंगे? दे विल एक्ट एज सोर्स. अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अपर पार्ट्स जहां खाना अब नहीं बन रहा, वो क्या बनेगा? इट विल एक्ट एज सिंक. ऑलराइट. तो देखो, ये रिलेशन चेंज हो गया. ओके. ओके. दिस इज हाउ रिलेशन विल चेंज. ऑलराइट. अनीशा, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. इट इज नॉट स्प्रिंग सीजन, इट इज ऑटम सीजन. ऑलराइट. ओके. ऑटम सीजन. ओके. स्प्रिंग में तो नए प्लांट्स निकलते हैं. ऑलराइट. ऑटम सीजन, लीव्स विल फॉल. रूट्स क्या बन गए? सोर्स बन गए. रूट्स क्या बन गए? सोर्स बन गए, जहां फूड स्टोर हुआ था. अपर पार्ट्स जहां लीव्स नहीं है, वहां भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो अपर पार्ट्स को खाने की जरूरत है. अपर पार्ट्स विल बिकम सिंक. ओके. तो बच्चे, दिस इज हाउ सोर्स टू सिंक रिलेशन विल चेंज. अब बच्चे, हम खुद जज कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर क्या हो रहा है. प्लांट के अंदर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फूड की ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी. अगर खाना जहां बन रहा है, तो वहां से फूड को आपको बाहर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. देन लीव्स विल बिकम सोर्स. सिंक जहां फूड यूज होगा या जहां फूड स्टोर होगा. कुछ सीजन में या कुछ कंडीशंस में ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी. हाउ दिस पोजीशन विल बी रिवर्स्ड? ये पोजीशन रिवर्स कैसे होगी? हाउ इज दिस पोजीशन गोइंग टू बी रिवर्स्ड? वंस लीव्स फॉल, जब एक बार लीव्स गिर जाएंगे, फिर क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? योर फूड विल मूव फ्रॉम रूट्स, जो अब सोर्स बन गए, टू दी अपर पार्ट्स, जो अब सिंक है, जहां अब खाना नहीं बन रहा. So this is how source to sink relation will change. I hope this is clear. Okay. अब बच्चे, let's talk about process of translocation. Translocation होती कैसे है? अब बच्चे, we need to remember in translocation phloem is involved.
Okay, translocation of food occurs through phloem. Translocation of food occurs through phloem. Translocation occurs through phloem. अब बच्चे in phloem tissue we have many components. phloem के अंदर अलग अलग components हैं. Alright, उसमें से आपने एक कंपोनेंट पढ़ा होगा बच्चे, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. बच्चे सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स प्ले द मेजर रोल. Sieve tubes and companion cells, they will play the major role in transportation of food in plants. Okay, आकृति, ट्रीज जिनके लीव्स पूरे साल नहीं गिरते उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एवरग्रीन प्लांट्स और पेरिनियल. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेसिडुअस होते हैं. डेसिडुअस का मतलब जिनमें लीफ गिर जाते हैं. ओके, लाइफ साइकिल के हिसाब से. ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी ट्रांसलोकेशन की जो कंडीशन है वो चेंज होगी. ऑलराइट, तो जिन लीव्स के अंदर नहीं गिरते उनको हम पेरिनियल या एवरग्रीन कहते हैं. डेसिडुअस हैं जिनके अंदर लीव्स गिरते हैं. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. ऑलराइट, सो ट्रांसलोकेशन विल अकर थ्रू द फ्लोएम. ऑलराइट, आई विल जस्ट गो बैक टू द नोट्स. वहां ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है कि ये प्रोसेस होता कैसे. ऑलराइट, ओके. So बच्चे, this is see आकृति, why leaves do not fall or why leaves fall. This is something which has occurred over the period of evolution. Evolution में बहुत सारी ऐसी conditions रही हैं जहां हमने अलग अलग adaptations या modifications देखी. ठीक है, तो जो deciduous plants हैं वो angiosperm group में आ गए. फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उनमें अलग अलग कंडीशंस हैं. जनरली हम एवरग्रीन प्लांट्स जो देखते हैं वो हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में डेसिडुअस भी हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर जिनमें लीफ नहीं गिर रहे. तो बच्चे ये अलग अलग कंडीशंस हैं जिनके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है. दिस इज हाउ दे हैव इवॉल्व्ड. ऐसी ही एवोल्यूशन प्रोसीड हुई है. ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता. ठीक है, जैसे अगर मैंगो ट्री, हम बोले मैंगो ट्री के लीव्स क्यों नहीं गिर जाते सारे, तो बच्चे ऐसा क्यों है, वो इसी तरीके से इवॉल्व हुए. दे हैव इवॉल्व्ड इन सच अ मैनर ओनली. ऑलराइट, इफ यू टॉक अबाउट डेसिडुअस प्लांट्स जिनमें लीव्स गिरते हैं, तो वो ऐसे क्यों है? क्योंकि वो कुछ ऐसी कंडीशंस में रहे हैं जहां बहुत ज्यादा समर में टेम्परेचर हाई हो जाता है तो लीव्स गिर जाते हैं. तो बच्चे ये अलग अलग अडेप्टेशंस हैं. ठीक है, इनके पीछे कुछ ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग नहीं है. ऑलराइट, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अकर्स. तो बच्चे जो पहला स्टेप है, the first step, it is known as loading. All right, loading, this is okay. Let me use a color which we can see on it. All right, I hope ये color okay. चलो कलर दिख रहा है. Okay, the first step is loading. बच्चे, what do we understand by the term loading? loading का क्या मतलब है? Okay, loading से हम क्या समझते हैं? बच्चे, loading simply means, लोडिंग का क्या मतलब है कि जहां खाना बन रहा है, जहां फूड बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, ओके, वहां आपका जो कंपेनियन सेल है, व्हाट इट विल डू, इट विल पिक अप फूड एंड इट विल कंटिन्यूअसली लोड इट इनटू द एडजॉइनिंग सीव ट्यूब. आपका जो कंपेनियन सेल सोर्स के पास है वो क्या करेगा, वहां से फूड को उठा के कंटिन्यूअसली अपने साथ वाला जो सीव ट्यूब है उसके अंदर लोड करेगा. तो लोडिंग उस प्रोसेस को कह रहे हैं. अब अच्छा, यहां लोडिंग के टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि आप लगातार एक जगह पे फूड को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो या एक जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो यहां यू आर मूविंग अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन. तो यहां बचे एनर्जी यूज होगी. ओके, लेट्स टेक अ सिंपल एनालॉजी. लेट्स से यू आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर. आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपकी ट्रांसफर हो गई है. तो बच्चे, हम ट्रक मंगवाते हैं, ट्रक में हम अपना सामान लोड करते हैं ताकि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें. अब बच्चे, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग जब हम करते हैं, क्या हमें एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती?
हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है ना सामान को लोड करने के लिए, सामान अपने आप थोड़ी लोड हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग व्हेन कंपेनियन सेल इज लोडिंग सुक्रोज इनटू द सीव ट्यूब। ठीक है, जब कंपेनियन सेल इस सुक्रोज को लोड करेगा एडजॉइनिंग सीव ट्यूब में, तो वहां क्या यूज होगी, वहां एटीपी यूज होगी, एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड बिकॉज companion cell is continuously loading the sucrose against the concentration gradient। इस सेल के अंदर सीव ट्यूब में ज्यादा शुगर हो जाएगी। तो बच्चे जो जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सीव ट्यूब। तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां शुगर बढ़ गई सीव ट्यूब के अंदर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वाटर इज गोइंग टू मूव इन, वाटर इज गोइंग टू मूव इन ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, वाटर जाइलम से निकल के किधर आएगा, सीव ट्यूब में जहां शुगर लोडेड है। जब बच्चे यहां वाटर एंटर करेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड। तो यहां से बच्चे प्रेशर की वजह से पानी के साथ क्या होगा, शुगर विल मूव, शुगर विल मूव इनटू प्लेसेस वेयर देयर इज लो प्रेशर। और बच्चे लो प्रेशर कहां होगा, वेयर इज लो प्रेशर, वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, जहां खाने की रिक्वायरमेंट है। तो जब खाना वहां पहुंचेगा, कंपेनियन सेल विल टेक दिस आउट एंड स्टोर इट इनटू द सिंक एंड वाटर विल अगेन एग्जिट इनटू द जाइलम थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, तो बच्चे दिस इज हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड। इस तरीके से फूड क्या हो रहा है, फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आई विल जस्ट क्विकली समराइज दिस इन द फॉर्म ऑफ अ नोट, इसको एक छोटे से नोट में लिख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन अकर्स थ्रू फ्लोएम कैसे, companion cell which is in close contact, companion cell which is in close contact, which is in close contact with, companion cell which is in close contact with sieve tube continuously, okay, sieve tube uses ATP to move sucrose from source into adjoining sieve tube। ओके, कंपेनियन सेल क्या करेगा बच्चे, ये लगातार एनर्जी को यूज करके क्या करेगा, सुक्रोज को सोर्स में से एडजॉइनिंग सीव ट्यूब के अंदर क्या करेगा, लोड करेगा, इट विल मूव इट देयर। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके बाद क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन, this results in movement of water, this results in movement of water from sieve tubes, this results in movement of water from sieve tubes to, sorry, not sieve tubes, this results in movement of water from xylem into sieve tubes by osmosis। अब बच्चे osmosis की वजह से क्या होगा, by the process of osmosis, by the process of osmosis water will enter into the sieve tubes from xylem vessels, xylem vessel से water अंदर enter करेगा। all right, इसकी वजह से क्या होगा, this will lead to increase in pressure, this will increase, this will increase pressure inside the sieve tubes,
This will increase the pressure inside the sieve tubes. The water along with sucrose will move into places where the food is less, या where food is required. ओके तो इस तरीके से बच्चे क्या हो रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, फूड जो है वो मूव कर रहा है बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन. वी नीड टू रिमेंबर कंपेनियन सेल जो है वो लगातार एटीपी यूज करके क्या करेगा, सोर्स में से एडजॉइनिंग सीव ट्यूब में सुक्रोज को मूव करेगा बाय यूजिंग एटीपी. दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग एंड दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस. ओके इसकी वजह से क्या होगा, जो जाइलम में से वाटर है वो सीव ट्यूब के अंदर एंटर करेगा क्योंकि वहां शुगर कंटेंट बढ़ गया है बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. जब वाटर एंटर करेगा, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द सीव ट्यूब, एंड व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस सुक्रोज विल बी पुश्ड टू प्लेसेस वेयर द फूड इज रिक्वायर्ड. जहां फूड की रिक्वायरमेंट है वहां सुक्रोज क्या होगा, पुश हो जाएगा अलोंग विद वाटर. तो बच्चे दिस इज हाउ ट्रांसलोकेशन अकर्स इनसाइड द प्लांट्स. ऑलराइट, we need to remember that it is an active process. It is a active process. ये active process है, यहाँ energy spend हो रही है, and this is something which has not happened, which was not observed when we saw upward movement of water through ascent of sap. Okay, I hope this is clear. Okay.